Yeah, so good afternoon everyone. Good afternoon. आज का सेशन थोड़ा सा different है from the sessions which we have had earlier. I'm not allowing the participants to unmute themselves. Okay, Saroj ji. Yes, please. Yeah, because otherwise then there is a lot of Ask disturbance. them if they have any questions in the middle of the session, just type it on the chat box so that we can take it later. Yes, absolutely. So so good afternoon everyone, and welcome to a very, very different session on Cafe. This is the member to speaker initiative wherein we have Saroj Agarwal ji with us. She is a psychological counselor and life skill coach भी है ये, और काफी सारे courses इन्होंने किए हैं on psychology, and she is a lifelong learner that I came to know while I spoke to her for the first time on the phone. And उनको बहुत like she herself said that we must take up this kind of a session in Cafe to create awareness about psychological problems which we all are facing in our everyday lives, but sometimes we ignore them, even knowing that yeah problem है, ठीक हो जाएगा, and sometimes we don't know कि अपने को problem है या किसी और को है अपने family में, and we are not aware about that. So this session is all about being a better caregiver, since being the women of the house, अपना major responsibility है ये to take care of every other family member and their well-being. So this session is basically bettering us in being a caregiver to our family members. And Saroj ji, thank you so much for choosing this topic, because I think आज के दिन में सभी को जरूरत है खुद के लिए या family member के लिए, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए. I think more than the elders nowadays, बच्चों को ज़्यादा psychological issues होने लगी है. So Saroj is also, she was also associated with Our Lady Queen of the Mission School as I was a school counselor there. Yes. Yeah, as the school counselor. और उन्होंने 250 बच्चों से ज़्यादा बच्चों को काउंसिल किया है. इन्होंने काफी सारे deliberations भी किए हैं CA and other communities में. But आज online इनका पहला deliberation है at Cafe. So welcome Saroj ji for your first online deliberation at Cafe, and we hope to have a very, very fruitful session with you. मेरा एक ही request है Saroj ji कि आप थोड़ा हिंदी ज़्यादा use करें so that अपने सब connect कर पाएं. Okay. Thank you so much. हिंदी सबके लिए ठीक है ना? अगर किसी को नहीं समझ आता है तो आप chat में लिख सकते हो. I think Saroj ji आप हिंदी ज़्यादा use करना. Absolutely. I'll use a mixture of language. हाँ, दोनों. Yes. I'll try to concentrate more on the Hindi part. But I try to do it. And thank you, Kavita, for such a wonderful introduction. एक introduction मैं अपना भी देती हूँ. Shall I share my screen now? Yes, you can. So this is my screen. And yeah. Yeah, so we can see your screen. Everybody can see my screen? Yes. Okay, so I am Saroj Agarwal, and as said, already introduced by Kavita, that I am a psychological counselor. Actually, I am a psychotherapist, but I like to call myself a psychological counselor because people connect with the word counselor. Yeah. Psychotherapist बोलने से बहुत बार आते हैं. Saroj ji, do you mean by a psychotherapist, like Shailja ji ne rightly asked. So I'm a Hello. Saroj ji, शायद आपके यहाँ पे इंटरनेट का थोड़ा सा डिस्टर्बेंस है क्या? अच्छा नहीं, मेरे यहाँ तो हॉटस्पॉट एकदम सही चल रहा है. Can you hear me? अभी सुन रहा है, बीच में थोड़ा ब्रेक हो रहा था. Am I audible? Yes. अभी सुन रहा है? Yeah. Okay. So
I have chosen this topic because even I have been through this phase for around a year and a half, and I know what it means when you don't have somebody to hold your hand onto when you're going through this phase. So I'm mother of two. My daughter is an INAC surgeon in NRS Hospital. She's doing a second year in postgraduate as junior resident. And my son is a CFA and he's working in सरोज जी just आप एक second रुकिए ना. Let me ask. Yeah, is it? So this is all about me. सरोज जी आपके यहाँ पे इंटरनेट प्रॉब्लम हो रही है. One message is here, but I just check my internet. You just give me 1 second, okay? Yeah. कुशाल देखो यहाँ इंटरनेट प्रॉब्लम हो रही है. इंटरनेट प्रॉब्लम हो रही है बेटा. Just check it out. I just excuse myself for a minute, okay? Yes, absolutely. Sure. So please be patient till we have her back. And the irony is that none of you can unmute yourself. Aha. Yes. Can you hear me now? Yes. Yeah. So that was my introduction. So now let me start with the presentation. Yeah. I'm going to read certain things and I want you to just listen to this. Okay. I am very ugly. So don't try to convince me that I'm a very beautiful person. Because at the end of the day, I hate myself in every single way. And I'm not going to lie to myself saying there is beauty inside of me. That matters. So rest assured, I will remind myself that I'm a worthless, terrible person. And nothing you say will make me believe that I still deserve love. Because of no matter what, I am not good enough to be loved. And I'm in no position to believe that beauty does exist within me. Because when I look in the mirror, I always think, am I as ugly as people say? I want all of you to type, how did you feel when I read this poem? In the chat box, please. Am I audible? Yes, Saroj ji. आपको सिर्फ अब मेरी आवाज सुनेगी because बाकी सबको मैंने म्यूट कर रखा है. Yeah, then it's okay. Yeah. So yes, very sad, very depressed, feeling depressive, negative thoughts, pessimistic, yes. Anybody else? Very much relatable, okay. I find this absolutely bad, can't think like this, absolutely. So see, everybody in this Zoom room disturbed. Everybody in this room is right now in a positive frame of mind, right? So even listening to these lines, we all felt very depressive, very sad, very disturbed, very negative thoughts. So imagine if a person who is going through this phase, how is she or he feeling? Can you understand the level of sadness or the level of depression or the level of negativity that person is into? True. Now let me read this again. Okay. Am I as ugly as people say? Because when I look in the mirror, I always think beauty does exist within me. And I'm in no position to believe that because of no matter what, I'm not good enough to be loved, but I still deserve love. And nothing you say will make me believe that I'm a worthless, terrible person. So rest assured, I will remind myself there is beauty inside of me that matters. And I'm not going to lie to myself saying I hate myself in every single way. Because at the end of
I am a very beautiful person. So don't try to convince me that I am very ugly. So what did you feel when I read this? Yeah, the positive and the determined, motivated person. Absolutely. So this session is going to be to help a person who was feeling that low as in the first poem, so that we can help him to come to this thought process. So what is depression? Depression is a common serious medical illness that negatively affects how you feel, the way you think and how you act. ये तो एक theoretical हाँ. line definition है. But what I want to say is कि जब हम लोगों को क्रिटिसाइज की जाती है बहुत सारे कारणों से हम लोग we go into this thought process of negativity मतलब it takes over our positivity and हम लोग हर चीज में हमेशा बहुत नेगेटिव हो जाते हैं. हम लोग बहुत ज्यादा नेगेटिविटी पे फोकस करने लगते हैं. वी टेंड टू लूज कंट्रोल ओवर आवर पॉजिटिव थॉट्स एंड इट स्टार्ट्स विद अ स्मॉल इंस्टेंस. बट जब हमको वो सपोर्ट नहीं मिलता है धीरे 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 हमारी वो नेगेटिविटी इतनी ज्यादा बढ़ जाती है तो वी क्रिएट अ बाउंड्री अराउंड आवरसेल्व्स एंड वी डोंट लेट एनीबॉडी कम इनसाइड. मूड स्विंग्स ये तो सबको होता है राइट. हम लोग सब वी ऑल गो थ्रू दोज मूड स्विंग्स. बट हम लोग जब थोड़ी एक दिन दो दिन कुछ घंटों बाद कुछ दिनों बाद वी जस्ट कम आउट ऑफ इट एंड वी स्टार्ट लीडिंग अ नॉर्मल लाइफ though that instance has affected us somewhere, right? But when that mood swing continues for more than 15 days and there are certain symptoms that continue into that person, then it is called a depression. डिप्रेशन के भी कुछ अलग अलग लेवल्स होते हैं. लाइक जैसे एक दलदल है, अगर आप दलदल में गिर जाते हो तो यू सी कि जैसे ही वो पर्सन गिरा इफ यू जस्ट पुट आउट योर हैंड आप उसको आराम से निकाल लेते हो राइट. जब अगर वो इंसान थोड़ा छटपटाता है तो उसके पैर और थोड़ा धंस जाते हैं, ज्यादा अंदर चले जाते हैं. यस देन यू नीड एक रस्सी, उसको रस्सी दे के यू ट्राई टू पुल आउट विद द रस्सी. वो फिर भी स्ट्रगल करता है तो वो कुछ ज्यादा धंस जाता है. देन आइदर यू नीड अ कार और अ ट्रैक, उस पे रस्सी को बांध के फुल फोर्स के साथ हम लोगों को उसको निकालना पड़ता है. द सेम वे इट इज विद डिप्रेशन. डिप्रेशन जब एकदम इनिशियल स्टेजेस में होता है व्हेन दैट पर्सन हैज गॉन is showing little signs of depression, तब अगर उसको एक फैमिली सपोर्ट मिलता है, एक फ्रेंड का सपोर्ट मिलता है, एनी लव्ड वन का सपोर्ट मिलता है, then that person can hold on to that hand and come out of it. Okay. Yeah, making sense. Yeah, am I making sense? Yeah. So this is what we are going to do. I'm going to in this session I'm going to teach you certain skills or certain characteristics that a caregiver should have to bring out their near and dear ones out of the clutches of depression. As everybody knows, 1 in 4 people are into depression nowadays. There can be, let's see, what are the causes of depression? There are physical aspects such as genetic. जीन्स में होता है, अगर हमारे किसी दादी नानी काका मामा फैमिली ट्री में किसी रहा होता है तो it is probable that it will come down to you also and you will get those depression ka things. Early childhood trauma, maybe physical abuse or a mental abuse, if you have gone through those things. If you have a person जो हमेशा आपके ऊपर ताने कसता है, if you've got a friend जो आपको हमेशा रिजेक्ट करता है, इग्नोरेंस, मेनी रीजंस चाइल्डहुड में होता है, उसके कारण लेटर स्टेजेस ऑफ लाइफ में यू मे टेंड टू गो इनटू डिप्रेशन. ब्रेन स्ट्रक्चर, हमारे ब्रेन स्ट्रक्चर में अगर हमारा फ्रंटल लोब अगर ये थोड़ा कम काम करता है, सो this can take you into depression because certain hormones are not injected into your bloodstream, right? Medical conditions, if you're suffering from say cancer or obesity, आप बहुत ट्राई करते हो वेट लूज करने का, आपका वेट नहीं जाता है, डायबिटिक हो, थायराइड हो, whatever medical conditions that you're going through that might take you into depression. Drug use, अगर आप बहुत ज्यादा ड्रग्स या मेडिसिन पे डिपेंडेंट हो, either you may be taking drugs or more dependent on alcohol for your enjoyment or whatever the reason might be, उस कारण से भी आप डिप्रेशन में जा सकते हो. Stressful events, which is the most common one, is when you lose a loved one or when you lose a job or when you are going through a divorce or when you're going through a tough life in your marriage or when you are going through
let's say you've shifted your home and आप अपने पुराने घर को बहुत ज़्यादा miss करते हो, that can also take you into depression. Postpartum, before delivery, after delivery, and you won't believe it कि even before your menstrual state, जो 3-4 दिन होता है, even that takes you into depression. That is the biggest. That is एक चीज अच्छा है, people generally after their periods they come out of it, but chums पहले जो वो 3-4 दिन का पीरियड होता है उस समय केयर गिवर्स का बहुत बड़ा रोल होता है सपोर्ट करने का. Environmental influences like society, if you don't get acceptance from the society, you don't get love from the people that you want to be. If you don't get love from, जैसे हमारे इंडिया में बहुत ज्यादा फेमस है कि आपकी शादी हुई ससुराल से, आपका इतना एक्सपेक्टेशन होता है लेकिन आपको मिलता नहीं है. So that tends to take you into depression. If you don't get love from your husband, if you don't get acceptance from people or your job, your colleague, whatever it can be. So that is again a big reason. वो तो physical aspects है, ठीक है, but these aspects, जो emotional aspects है, these are very important for caregivers to understand. The first one is distortion of thoughts. What is distortion of thoughts? जब हमारे थॉट्स जो हमारे माइंड में आते हैं किसी भी इश्यू को लेके, किसी भी इंसिडेंट को लेके, दैट डज नॉट मैच विद द एक्चुअल रियलिटी, देन इट इज कॉल्ड अ डिस्टॉर्शन ऑफ थॉट्स. फॉर एग्जाम्पल, जैसे कविता ने कहा था कि बच्चे का टाइम होता है 7 o'clock आने का, 8 बज गया, बच्चा नहीं आता है, तो इंस्टेंट हमारे थॉट में क्या आता है कि उसका कोई हादसा हो गया, इफ ही इज ड्राइविंग, कहीं एक्सीडेंट तो नहीं हो गया हो. So from that time till the time he comes home, हम लोगों के अंदर बहुत ज्यादा एंग्जाइटी जाती है. So you know, regular recurrence of these things takes you into depression. So like शैलजा जी was asking कि थेरेपी क्या होती है. Cognitive behavioral therapy इस समय. So understand कि उसके ये thoughts क्यों आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, and how to replace those thoughts so that he can focus on the correct kind of thoughts and reality को समझ सके. Distortion of thoughts, suppose आपकी maid, हम लोग सब housewives हैं, 5 दिन छुट्टी ले ली, नहीं आई, immediately हम लोगों को लगेगा वो तो काम छोड़ दी. And ज्यादा होता है, we start looking for a new maid, या टेंशन में चले जाते हैं. सबसे बड़ा डिप्रेशन. सबसे बड़ा डिप्रेशन. So these are distortion of thoughts which takes us into depression. Need for approval from others. हम लोग बहुत ज्यादा outwardly focus करते हैं, अपने अंदर अपने आप से अप्रूवल से ज्यादा हम लोग दूसरों के अप्रूवल का हर चीज में वेट करते हैं. Suppose I want a new dress and I'm looking at my husband and उसने कुछ कहा नहीं, तो immediately वो एक कहीं ना कहीं feeling of sadness आ जाती है कि भाई आई एम नॉट गेटिंग दिस अप्रूवल. आई गोइंग, बार बार जाके हम लोग मिरर के सामने देखते हैं, am I not looking good, मैं क्या ठीक करूं, इसने तो कुछ बोला ही नहीं. And maybe my husband hasn't even noticed it. Maybe he hasn't even seen इसको मुझे कॉम्प्लीमेंट भी करना है. These things always takes us into depression. Validation again, we need validation from every person we meet that we are good. We need this what to say, हम लोगों को ये चाहिए मैं सबके गुड बुक्स में अच्छी बन के रहूं. वैलिडेशन अगर हमको नहीं मिलता है तो इट टेक्स मी टू. इसका एक एग्जांपल देती हूँ. व्हेन माय सिस्टर इन लॉ एक्सपायर्ड एंड शी वाज अ कैंसर पेशेंट, सो आफ्टर वी केम फ्रॉम देयर सब काम करके, सो आई वाज एक्सपेक्टिंग पीपल टू कम ओवर, होता है ना मोन करने के लिए. It was sad to say that nobody came. So you know, I felt so bad कि अरे ये क्या बात है, nobody has come to mourn. But why was this? She was my sister-in-law. It is nobody else's responsibility to come and mourn. It is my responsibility उनके जाने का मुझे तकलीफ हो. But वो validation तो हम लोगों को चाहिए ना. So this validation also tends to take us into depression. Acceptance. हमको जब सोसाइटी में, फ्रेंड्स में, ससुराल में, किसी भी ग्रुप में अगर हम ज्वाइन करना चाहते हैं, वहां से अगर हमको एक्सेप्टेंस नहीं मिलता है, आई गेट रिजेक्शन फ्रॉम अ फ्रेंड whom I really want to be friends with, एक्सेप्टेंस नहीं मिलता है तो हम डिप्रेशन में जाते हैं. लो सेल्फ एस्टीम, लो सेल्फ कॉन्फिडेंस, ये तो एवरीबडी नोज इज द मेजर कॉज ऑफ डिप्रेशन. Coexisting in society, everybody wants to be a part of society.
सबको, मैन इज अ सोशल एनिमल, तो सबको एक ग्रुप चाहिए होता है अपना जीवन को सुखी अच्छे से एंजॉय करके बिताने के लिए, लेकिन जब वो नहीं मिलता है तो दैट सेंड्स अस इनटू डिप्रेशन, abandonment. When we are abandoned by somebody, abandon means छोड़ देना नहीं, ये चीज नहीं. abandon means जब आपकी फीलिंग्स की कोई कद्र नहीं करता है, आपके थॉट्स की कोई कद्र नहीं करता है, यू feel lonely, आपको बहुत अकेलापन, even though you're surrounded by so many people around you, yet you feel very low. So that is again abandonment and lack of being loved. अगर आपको कोई प्यार नहीं करता है, आपको हमेशा ये लगता है कि मुझे, इंसान तो भूखा होता है प्यार का, उसको तो जितना मिल जाए उससे और ज्यादा चाहिए, तो लेकिन जब वो नहीं मिलता है, सो दैट इज अगेन अ बिगेस्ट कॉज ऑफ डिप्रेशन. व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ डिप्रेशन? अगर हम हमारे आसपास इतने फ्रेंड्स, हमारे आसपास इतने लव्ड वंस हैं कि हम लोग ये सोच सकते हैं कि कौन डिप्रेशन में है कौन नहीं है, हमको कैसे पता चले? मूड स्विंग्स तो सबको होते हैं, आज खराब मूड है कल खराब मूड नहीं है, तो हम कैसे पहचानेंगे कि वो डिप्रेशन में है कि क्या है, सो दैट आई कैन गो आउट एंड हेल्प हिम. लाइक शैलजा जी सेड कि 10 years से that person was not working and 2 साल पहले से हम लोगों को पता चला कि he is having some problem, right? So 8 years तो पूरा वेस्ट हुआ ना. 8 years पहले अगर पता चल जाता, so उनको हेल्प करने में हम लोगों को ज्यादा इजी हो जाता, right? So these are the symptoms that we need to understand. A depressed mood, of course, loss of interest in daily activities. आप जो रोज काम करते हो उसमें if you lose interest, या आप किसी चीज को बहुत enjoy करते हो लेकिन अब आपको वो चीज नहीं अच्छी लग रही है, so that is again a sign. Appetite और weight changes, changes in sleep pattern, या तो बहुत ज्यादा सो रहे हो या आपको नींद ही एकदम नहीं आ रही है. Agitation, restless and pacing up and down. आप देखोगे कि एक नॉर्मल पर्सन है बट धीरे धीरे वो ऐसे अपने पैरों को हिलाता है या अपने हाथों को हर समय ही इज डूइंग इट लाइक दिस, और हमेशा कुछ ना कुछ उसकी बॉडी में एक मूवमेंट चलता रहता है. ही माइट लुक हैप्पी इन द मोमेंट, बट इफ ऑल ऑफ अ सडन दीज एक्टिविटीज हैपन, दिस इज अ साइन ऑफ डिप्रेशन. एंगर और इरिटेबिलिटी, छोटी छोटी बातों में चिढ़ जाना, अचानक से बहुत जोशीला भरा इंसान, बहुत धीरे मूवमेंट करना, लिथार्जिकली रहना, बहुत स्लो बोलना, बहुत धीरे धीरे बात करना. सेल्फ लोडिंग, हमेशा अपने आप को नीचा रखना, हमेशा अपने बारे में गलत सोचना, हमेशा अपने बारे में लो सोचना, हमेशा अपने बारे में अपने ऊपर भरोसा नहीं होना. रेकलेस बिहेवियर, अगर आप ड्राइविंग करते हो तो ऑल ऑफ अ सडन स्मूथ ड्राइविंग से योर ड्राइविंग बिकम्स रेकलेस. और इफ यू आर अ सोशल ड्रिंकर, आप ड्रिंकिंग में आपका कंट्रोल नहीं रहता है. स्मोकिंग में यू कंटिन्यूअसली स्मोक, अगर आप 2 सिगरेट पी रहे हो तो आप यू कन्वर्ट इट टू 4 cigarettes. So this is again signs of depression. प्रोक्रास्टिनेशन, अगर आप आज का काम कल पे, कल का काम परसों पे, धीरे धीरे काम को टालते जाते हो, दैट इज अगेन अ साइन ऑफ प्रोक्रास्टिनेशन. कंसंट्रेशन प्रॉब्लम्स ये बच्चों में बहुत ज्यादा होती है, जब बच्चे कंसंट्रेट नहीं कर पाते अपनी पढ़ाई में या बड़े अपने काम में कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं. अनएक्सप्लेन्ड एक्स एंड पेन्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि ये जनरली एल्डरली पीपल में देखने मिला है. आप लोगों ने जरूर नोटिस किया होगा आप लोगों के फैमिली मेंबर्स में, ऑल ऑफ अ सडन यू सी कि आपकी मदर इन लॉ या जो भी है अचानक बोलेंगे आज तो मेरे पग दुख रहे है, नेक्स्ट डे से आज तो मेरे कंधों दुख रहे है. when you take them to the doctor you see कि वहाँ डॉक्टर बोलते हैं इनको तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, but where are these pains coming from? These pains are coming from the stored, हमारे अनकॉन्शियस माइंड में जो हम स्टोर कर लेते हैं जितने भी हमारे ग्रीवियंसेस हैं या बैड एक्सपीरियंसेस हैं या डिफिकल्ट सिचुएशंस जिनके थ्रू हम गए हैं, जब वो फुल हो जाता है. सी ये वाला पोर्शन सबसे ज्यादा दुखता होगा जब आप डिप्रेशन पे जाते हो. आप किसी से भी पूछना दिल से मेरे यहाँ दर्द होता है, देयर इज एन ऑर्गन कॉल्ड एमिगडाला यहाँ पे जिसमें हमारे सारे डिफिकल्ट सिचुएशन तो जितने भी एक्सपीरियंस हमारे लाइफ के वो स्टोर हो जाते हैं अनकॉन्शियस माइंड में. और जब वो भर जाता है, जैसे पानी का ग्लास भर जाता है फिर वो छलकता है, बूंद बूंद गिरती है, तब हमारे ये पेन्स आने लगते हैं बॉडी में, विच शोज दैट दिस मेंटल हेल्थ नीड्स टू बी एड्रेस्ड. उसको एड्रेस कैसे करेंगे, वी विल टॉक अबाउट इट इन द लेटर पार्ट. लॉस ऑफ सेक्सुअल डिजायर
and recurrent thoughts of death, suicide or an attempt to suicide. बहुत बार होता है ना कि पीपल अगर कोई कमिट करता है सुसाइड तो वो पहले सिग्नल जरूर देता है, लेकिन जिससे भी वो बोलता है वो उसको नहीं पकड़ पाते हैं. सो अगर वो रेकरेंटली ये बात बोल रहा है तो ही नीड्स इमीडिएट हेल्प. अगर आप सच में किसी को हेल्प करना चाहते हो, सो देयर आर सर्टेन क्वालिटीज दैट आइदर यू शुड हैव और यू नीड टू डेवलप इट इन योरसेल्फ. आपके कोई क्लोज प्रॉक्सिमिटी में है डिप्रेसिव पेशेंट और आप चाहते हो कि नहीं मैं उसको हेल्प करूं, और अगर इनमें से 5 चीज आप में नहीं है तो आप ये स्किल को प्लीज डेवलप कीजिए. सबसे पहला है पेशेंस. आई रिमेम्बर कविता ने जो कैनवा क्लासेस लिया था उसमें बाद में फीडबैक में एवरीबडी वाज आस्किंग हर कि तुम इतनी काम, इतनी कंपोजर से, इतनी पेशेंस से सबको सब कुछ समझा रही थी. तो इमेजिन जब हम लोगों को वो पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड में वो पेशेंस इतना अच्छा लगा, तो अगर हम किसी डिप्रेसिव पर्सन के उसके सामने अगर हम पेशेंस रखेंगे, उसकी बात सुनेंगे, उसकी बात समझेंगे, उसको टाइम देंगे, तो आप उसको कितना हेल्प कर सकोगे. कैन यू इवन इमेजिन? वेरी ट्रू. Compassion. Unless and until you don't have compassion to help somebody, if you don't have the compassion for that person whom you want to help, if you don't have that love कि नहीं मुझे तो उसको हेल्प करके उसको निकालना ही है बाहर, अगर वो compassion आपके अंदर नहीं है तो you will never be able to help एकदम पूरी तरीके से. सुपरफिशियली आप उसको हेल्प कर पाओगे. Attentiveness, this is very important. बहुत बार क्या होता है जब हम लोग बच्चा स्कूल से आता है एंड उसके स्कूल में ही हैज हैड अ बैड डे एंड वो आपसे शेयर करना चाहता है बट यू आर डूइंग समथिंग एल्स, तो आप उसको तुरंत क्या बोलते हैं, बेटा अभी नहीं बाद में आना. कई मदर्स होती हैं जो समझती है बच्चा स्कूल से आया है कुछ बोलना चाह रहा है तो यू लिसन टू हिम, बट आप क्या करते हो, आप उस समय कुछ और करते करते उसकी बातें सुनते हो. थोड़ी देर में वो बच्चा बोलेगा रहने दो मम्मी एंड ही वॉक ऑफ. This is lack of attentiveness. उस समय आप कुछ भी कर रहे हो उसको छोड़ के उस बच्चे की बात सुनिए. अगर आपकी फ्रेंड आपसे कुछ शेयर करना चाहती है, आप उसके साथ शॉपिंग गए हो एंड शी वांट्स टू शेयर समथिंग विद यू एंड यू सेइंग अरे देखो देखो ये ड्रेस देखो कितना अच्छा लग रहा है, एंड वो मनी मन सोचेगी छोड़ो, शी विल नेवर शेयर इट विद यू. सो यू विल हैव टू लर्न टू बी अटेंटिव टू द पीपल. डिपेंडेबिलिटी. देखिए हम लोग बहुत कुछ मुंह से वर्बली बोलते हैं राइट, लेकिन हम लोग बहुत कुछ नॉन वर्बली भी बोलते हैं, अपने बॉडी लैंग्वेज से, अपने एक्सप्रेशन से, अपने आई मूवमेंट से, अपने हैंड मूवमेंट से. हम काउंसलर्स लोग 80% ऑफ द मैसेजेस दैट वी रिसीव फ्रॉम आवर क्लाइंट इज थ्रू हिज बॉडी लैंग्वेज. वो बोलता आई एम वेरी हैप्पी बट उसकी आईज एकदम सूनी रहती है. He is shaking his leg. He says, no, ma'am, there's no problem in my life. But उसके legs shake कर रहे हैं. So there, we send so many non-verbal messages. तो dependability आप कैसे prove करोगे? आप सामने वाले को तो ये नहीं बोल सकते, you can depend on me, you can depend on me. But is that doing justice to this? No. So you have to tell him your dependability through your actions, through your words, and through your body language. तब वो आपके सामने आके पूरी तरीके से खुल के आपसे हेल्प लेंगे. ट्रस्टवर्दीनेस अगेन वेरी इंपॉर्टेंट. कॉन्फिडेंशियलिटी. अगर आपसे अपने मन की बात शेयर करता है तो आपको उसको प्रूफ करना है कि यू कैन ट्रस्ट हिम एनी टाइम एनी मोमेंट, एंड आपने जो भी सुना या उसने आपसे जो भी कहा वो आपके 2 कानों के बीच रहेगा और मुंह से तो एकदम नहीं निकलेगा. Unless and until it is very severe and you get indications that he or she is going to harm himself or herself, तब आप उसके पेरेंट्स को, उसके नोन पीपल को आप बता सकते हो. अदरवाइज वो कॉन्फिडेंस अगर आप बना के रखोगे सो दैट विल हेल्प हिम ओपन अप आउट टू यू. सो दीज आर द 5 क्वालिटीज जो मस्ट है. उसके अलावा तो बहुत लंबी लिस्ट है, मैं इतना समय नहीं लेना, बट दीज आर द 5 मस्ट क्वालिटीज. हम लोग बहुत बार बहुत कुछ बोल देते हैं, अरे छोड़ो ना तुम तो कुछ ज्यादा ही सोचते हो, खुश रहा करो, देखने से तो तुम एकदम भी डिप्रेस नहीं लगते हो, इतना भी बुरा नहीं हो सकता है, अगर तुम्हारा पति तुमको डांटा तो इतना तो बुरा नहीं हो सकता है ना, सिर्फ तुम्हारे दिमाग की खुराफत है, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है तुम ये सब चीजें क्यों सोच रहे हो. डोंट थिंक लाइक दिस, प्लीज डोंट बी नेगेटिव. चलो सो जाओ, सो के उठोगे ना तो तुमको अच्छा लगेगा, हाँ सो के उठोगे तो ठीक हो जाएगा.
go out for a walk करके आओगे तो you will feel fresh, और shall I cook something good for you, तुम्हारा मूड cheer up हो जाएगा. सुनो, आजकल तो इतने मोटिवेशनल गुरुज आते हैं, उनकी किताबें पढ़ो, उनको सुनो, बट do you think he has not thought about all this? जो इंसान एक डिप्रेसिव मूड में होता है वो ये सब बातें नहीं सुनना चाहता है, वो ये सब सुनने से वो अपनी बाउंड्री को, अपनी वॉल को और टाइट कर लेता है कि कोई इसको पेनिट्रेट करके अंदर नहीं आएगा, क्योंकि दे विल नॉट अंडरस्टैंड व्हाट आई एम गोइंग थ्रू. हमको उनको ये प्रूफ करना है कि आई अंडरस्टैंड, और ये सब बातें बोल के हम लोगों से और दूर कर देते हैं. सो व्हाट शुड वी डू इंस्टेड? सबसे पहले वी शुड बी एम्पैथेटिक. See, there is a difference between being sympathetic and being empathetic. Sympathy मतलब दया दिखाना, हम लोग सबको दया दिखाते हैं, बट उसको दया नहीं चाहिए, उसको आपका साथ चाहिए अभी. तो हम empathy कैसे दिखाएंगे? Empathy means seeing their world from their frame of reference. जैसे हम बोलते हैं ना, जब हम सामने वाले के जूतों में जब तक खड़े नहीं होंगे, मुझे पता नहीं चलेगा जूते कहाँ से काट रहे हैं, right? So this is, you have to be empathetic. बहुत बार होता है ना, वो अगर सामने वाला आपको कुछ बता रहा है कि ये चीज अच्छी नहीं है, मेरे संग ऐसा हुआ, एंड आई फेल्ट सो बैड, आई फेल्ट लाइक क्राइंग, मेरे पति ने मुझे डांटा. सो वी डोंट कनेक्ट विद इट कि पति ने डांटा तो क्या हो गया, उसके लिए इतना सोचने का क्या जरूरत है. सो वी डोंट रेजोनेट विद इट. बट इफ यू एक्चुअली वांट टू हेल्प दैट पर्सन, आप उस समय अगर आप रेजोनेट नहीं भी करो तो आप उसको उसी की बात उसको पैराफ्रेज करके बोलो, सच में पति डांटा तो बुरा तो लगा ही होगा ना. सो इमीडिएटली दैट पर्सन विल गेट दिस हिंट कि दिस पर्सन इज अंडरस्टैंडिंग मी. आप उसी के बात को रिफ्रेज करो इफ यू आर नॉट फीलिंग एम्पैथेटिक. दिस इज very important because we have been trained to feel empathetic. We immediately connect to that person. Yeah. But another person might not connect to that. ना वो resonate नहीं कर सकता. So we might paraphrase what he is feeling. That sounds terrible. No wonder you are upset. मुझे भी डर लग जाता अगर वो ऐसे अचानक से हाथ उठाता तो. या you must have been furious. गुस्सा तो तुमको बहुत जोर आया होगा. You know, because she said कि हमको इतना आया, तो यू रिपीटेड हर शी सेड कि हाँ, गुस्सा तो तुम्हारी जगह मैं होती तो मुझे भी आता. तो शी वुड इमीडिएटली कनेक्ट विद यू. Am I making sense? Yeah, yes, Suraj. I want to see thumbs ups on the chat box. So we have to be empathetic. Unless and until we are not empathetic, we will not be able to resonate with that person, and we will not be able to help that person open up to us. Listening is the best reward that a person can give another. Reward in the sense, यहाँ trophy नहीं है. Reward in the sense is कि something that we can give that person is by actually hearing him out. Yeah. जैसे पहले एग्जाम्पल दिया, बच्चा स्कूल से आया, वो आपसे कुछ कहना चाहता है, हम काम करते करते उसकी बातें सुनते हैं, बट नहीं, मुझे वैसे नहीं सुना. आई हैव टू ड्रॉप एवरीथिंग जो मैं कर रही हूँ, उसको छोड़ के आई सिट विद हिम एंड आई हियर हिम आउट व्हाट ही इज ट्राइंग टू say. Be empathetic and understand वो क्या बोल रहा है, and resonate with what he or she is saying. Husband आया ऑफिस से, all of a sudden he is feeling very irritated and very frustrated, और हम लोग घर में घुसते ही उनके ऊपर, तुम तो ऐसे ही आते हो, जब देखो तुम गुस्से में ही घर में घुसते हो, पता नहीं ऐसे ऑफिस में क्या करके आते हो. This is just a hypothetical example. Yeah, yes. So it so happens ना कि आप तुरंत ये बात बोल देते हो, एंड उस समय अगर वो चाहता भी आपसे शेयर करना, वो नहीं कर पाता है, वो सीधा अपने काम में जाके ही becomes quiet, and you will never know what that person is going through. So listening is the best reward. Listening का भी एक तरीका होता है, like I said पहले भी, you leave everything that you're doing, sit with that person and just listen. अगर आपको समझ में नहीं आ रहा, वो इतनी बातें बोल रहा है कि आपको नहीं समझ में आ रहा है, मैं रिएक्ट कैसे करूं, फिर भी आप उसका हाथ पकड़ के सिर्फ सुन लीजिए. आप बिलीव नहीं करोगे, जब हमारे पास क्लाइंट्स आते हैं, फर्स्ट सेशन, थर्ड सेशन, सरोज जी, इंटरनेट प्रॉब्लम हो रहा है फिर से. हमारे यहाँ तो इट्स एवरीथिंग इज ओके, देयर इज नो मैसेज कमिंग. अभी हो रहा है? नहीं, अभी ठीक है. अभी ठीक है. So shall I repeat what I said? Yes.
एक ब्लास्ट वाला सिर्फ जो आपने बोला ना कि So आपके as I was saying, हाँ क्लाइंट्स आते हैं, हाँ हाँ जब हमारे पास क्लाइंट्स आते हैं हमारे यहाँ, तो फर्स्ट सेशन, सेकंड सेशन, थर्ड सेशन, मे बी समटाइम्स इवन 4 सेशंस दे टेक जस्ट टू टॉक, क्योंकि उन लोगों को आज तक किसी ने सुना ही नहीं है, और उनको जब कोई 2 कान मिल रहे हैं सुनने वाले, तो वो लोग खुल के अपनी सारी बातें बोलना चाहते हैं, एंड वो बोल के देन दे से कि सी आई एम फीलिंग सो लाइट. सो इफ दिस रिवॉर्ड इज बीइंग गिवन कोई अपना से, तो उससे बढ़िया और क्या बात क्या हो सकता है? होगी when somebody is there to listen it out. So उससे बढ़िया और क्या बात हो सकती है, right? Absolutely. Do not give ज्ञान. हम लोगों को अगर कोई फ्रेंड है कि मेरे से ज्यादा तो ज्ञान किसी के पास है ही नहीं, तो हम लोग धड़ाधड़ एडवाइस पे एडवाइस देने लग जाते हैं उसको कि तुमको तो ऐसे करना चाहिए, तुम ऐसे कि नहीं तुमको ऐसे नहीं करना चाहिए, तुमको वैसे करना चाहिए. बट वो लोग जिस फ्रेम ऑफ माइंड में हैं उस समय, उनको आपका ज्ञान नहीं चाहिए. ज्ञान उनके पास भी है, उनको सिर्फ आपका सपोर्ट चाहिए. उस समय आप फिर वो एम्पैथाइज कीजिए उनके साथ इंस्टेड ऑफ गिविंग देम ज्ञान. हाँ, अगर वो आपसे चला के पूछते हैं कि यस प्लीज टेल मी, आई डोंट नो, आई एम सो कंफ्यूज्ड, आई कांट अंडरस्टैंड व्हाट टू डू, तब आप उसको अपनी राय दे सकते हैं. वो भी राय देने का एक तरीका होता है कि आई थिंक इफ यू कुड, व्हाट डू यू थिंक, अगर आप ऐसा करो तो सही नहीं होगा, ट्राई करके देखना चाहोगे, दैट वेज. ऐसा नहीं तुम तो यही करना, इट्स नॉट, इट डजंट वर्क. फिर वो इंसान आपसे फिर दूर हो जाएगा. उसने जो हिम्मत करके आपसे खुल के बात करने की कोशिश की थी, वो वापस अपने दूर से हो जाएगा. शो कॉन्फिडेंस इन देम, ऑलवेज बिलीव इन देम कि हाँ अगर वो बोल रहा है कि मुझे तकलीफ हुई, तो उससे जरूर तकलीफ हुई थी. अगर वो बोल रहे हैं मुझे बुरा लगा, मैं रोई, आई फेल्ट लाइक क्राइंग, या मुझे बहुत गुस्सा आया, एनी काइंड ऑफ इमोशन वो आपको बता रहा है, तो बिलीव कि ही हैज ट्रूली गॉन थ्रू दैट इमोशन. होता है ना कि मम्मी ने मुझे डांट दिया इसलिए मेरा मन किया मैं बैल्कनी से कूद जाऊं. बहुत बार होता है, बच्चे लोग एकदम उस लेवल तक सोच लेते हैं. तो वो मेरे पास आते हैं, तो हम लोग सिंस वी आर ऑल्सो ह्यूमन बींग्स, हमारे भी मन में आता है इतनी सी बात के लिए बैल्कनी से क्यों कूदना है भैया. बट वी हैव टू शो दिस कॉन्फिडेंस टू दैट पर्सन कि हाँ ये थॉट तुम्हारे माइंड में जरूर आया होगा. So if you say that things, if you tell them ki no, I can believe you must have gone through this, through empathizing, that person will surely open up to you. And give them small responsibilities. अगर आपके घर में है या आपकी कोई फ्रेंड है, तो आप उसको कुछ छोटी छोटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे सकते हो. अगर आपके बच्चे हैं, इफ योर चाइल्ड इज नॉट फीलिंग गुड, इफ योर एल्डर वन और योर डॉटर इज नॉट फीलिंग गुड, आप उसको छोटी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आज मम्मी को खाना में हेल्प करवा दो. सो वो जितनी देर भी वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज करेंगे, एटलीस्ट उतनी देर वो डिप्रेशन में नहीं रहेंगे. दे विल कम आउट ऑफ इट. फिर धीरे धीरे दे विल स्टार्ट एंजॉइंग वो चीजों को, and they will like coming out of the depressive mode, even if it is for 5 minutes. For example, जब आदमी डिप्रेशन में होता है ना, तो वो अपने रूम से निकलना नहीं चाहता, अपने बेड को छोड़ना नहीं चाहता है, सोफे के सामने, टीवी के सामने बैठ गया तो वहां से उठना नहीं चाहता है. लेकिन आप एज अ मदर अगर उसको बोलोगे कि बेटा आज एक टेबल लगा दो, मैं थोड़ा किचन में काम ज्यादा है, सो ऑफ कोर्स वो उठ के काम करेगा ही, लेकिन एटलीस्ट उसने उठा तो. दैट इज अगेन अ वेरी पॉजिटिव साइन कि वो उठ गया. नहीं तो अगर आप उसको रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं दोगे, तो वो अभी बैठा है, थोड़ी देर बाद पसरावा ही मिलेगा, सो जाएगा. राइट. एंगेज देम इन फैमिली कन्वर्सेशंस एंड प्रॉब्लम्स. अगर फैमिली का कोई मेंबर डिप्रेसिव मूड में है, तो हम लोग सोचते हैं ओ बाबा ये तो सब हमेशा सुस्त रहता है, उसको रहने दो, वी डोंट इवन गो आउट एंड टॉक टू देम. लेकिन अगर वो अपने रूम में बैठा है और आप लोगों के बाहर कोई कन्वर्सेशन या कोई डिस्कशन चल रहा है, तो प्लीज उसको इन्वॉल्व कीजिए. उसको इन्वॉल्व करने से ही विल फाइंड कि हाँ मेरे पेरेंट्स मेरे अंदर कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं, दे टॉकिंग अबाउट देयर प्रॉब्लम्स इन फ्रंट ऑफ मी, दैट मीन्स दे आर ट्रस्टिंग मी दैट आई एम ग्रोन अप इनफ टू अंडरस्टैंड देयर प्रॉब्लम्स. एंड कन्वर्सेशंस में पार्ट लेने बोल रहे हैं, सो दैट मीन्स दे हैव कॉन्फिडेंस दैट आई विल अंडरस्टैंड एंड आई एम अ पार्ट ऑफ दिस फैमिली एंड आई बिलोंग टू दिस फैमिली. सो वो 1% रे ऑफ होप उसके अंदर आई कि एटलीस्ट माय फैमिली इज मी. So always try to engage them in family conversations and problems. Discuss your thoughts and feelings with them. यहाँ मैं एक एग्जाम्पल देना चाहूंगी. When my daughter was studying for her medical PG entrance exam, NEET PG, so 18 hours, 20 hours a day she had to study.
and उसके सारे friends were totally into commerce section and they were enjoying their life like anything, and some of them were तो also earning. So ये हमेशा एक उसमें रहती, मैं तो सारा दिन पढ़ती रहती हूँ and see my friends they are enjoying. तो वो धीरे धीरे that 1 year of 20 hours of study every day, नेचुरल है, बहुत नेचुरल है, वो पर्सन डिप्रेशन में जाएगा ही. सो हाउ डू आई हेल्प हर आउट? आई ऑलवेज यूज टू टेल हर, पता है जब हम पढ़ते थे ना तो हम भी इन्हीं चीजों के थ्रू जाते थे ना. मेरे पास अगर कोई प्रॉब्लम नहीं भी होती तो आई यूज टू मेक अप प्रॉब्लम्स एंड आई यूज टू टेल हर. I used to create those problems and I used to discuss it with her. तो उसको ये लगता था मैं अकेली नहीं हूँ. There are so many, even my mom is going through difficult times. So that, you know, that gave her the courage to continue her studies and then come out of this. And now she's in a second year and she's enjoying her life. At one moment, she even thought of giving it up. But thank God I was doing this counseling course. उस समय I had just started. So I knew how to help her out. Yes, how to deal with this. Be there for them always. Make them your priority. कभी भी उनको आपकी जरूरत पड़े, सपोज यू आर ऑन अ शॉपिंग स्प्री एंड सम वन ऑफ योर फ्रेंड्स कॉल्स यू कि यार मुझे तुमसे बात करनी है, लेकिन यू वांट टू शॉप, लेकिन आपको उसको भी अटेंड करना है, तो लीव एवरीथिंग एल्स एंड गिव हर द टाइम. आपके बच्चे बोलते हैं, आपके लव्ड वंस बोलते हैं, आपकी मॉम आपको कॉल करके बोलती है कि आई वांट टू स्पेंड टाइम विद यू या आई वांट टू टॉक टू यू. मम्मी हम आज नहीं कल आएंगे. दिस इज व्हाट वी से कि मैं अभी आपके पास मैं कल आऊंगी. सो दैट पर्सन अगर कुछ बोलना चाह रहा होगा तो कल वो बोलेगा नहीं रहने दो हो गया. He will not open up. So please make them your priorities. Respect their thoughts and feelings. Depressive people have got lots of negative thoughts जिसके साथ हम लोग कभी resonate नहीं करते हैं. Respect तो बहुत दूर की बात है. So if we start feeling कि नहीं वो जो सोच रहा है वो उसके लिए it is बहुत valuable. उसके लिए it's very important. उसके लिए it's very valuable. And yes, he is thinking so because he is in that negative frame of mind. So if I want to help him come from that negative frame to even a 1% of the positive frame, please respect those feelings. Don't force them to do anything they don't want to do. सपोज यू फील कि आज बेटी बहुत डिप्रेसिव मूड में है, बहुत नेगेटिव मूड में है, चलो उसको शॉपिंग लेके चलते हैं. एंड शी सेज मम्मा हमको नहीं जाना है, लेकिन आप पीछे ही पड़ जाते बिकॉज यू नो उसके लिए शॉपिंग अच्छा है, बट उसको शॉपिंग नहीं जाना है. लेकिन हम तो माँ है ना, वो तो माँ मोड में जाने के बाद तो नहीं चलना है तो चलना. आई नो एवरीथिंग इज राइट फॉर यू, बट प्लीज डोंट फोर्स देम थिंग्स दे डोंट वांट टू डू. दे आर वेरी क्लियर हेडेड. कंफ्यूज्ड अपने इमोशंस को लेके होते हैं, लेकिन उनको क्या करना है इसके लिए वो लोग क्लियर हैं, क्योंकि उनको ये पता होता है कि मुझे जो भी करना है वो मुझे अपना भला नहीं करना है. तो शॉपिंग करने में मुझे मजा आएगा, इसीलिए मुझे वो नहीं करना है. सो वो जो माइंडसेट होता है उनका, उस माइंडसेट से हम निकालने के लिए, हेल्प करने के लिए वी आस्क देम टू गो आउट विद अस. बट इफ दे डोंट वांट टू, प्लीज डोंट फोर्स देम टू, क्योंकि वो आपसे और दूर भागेंगे, वो आपके पास नहीं आएंगे. Give positive reinforcements. Now what are positive reinforcements? जैसे मैंने पहले बोला कि आप उसको बोलिए बेटा आज डाइनिंग टेबल तुम सेट कर दो, तो it will be easy for me in the kitchen. And अगर वो कर देती है तो appreciate her in front of the whole family. Because वो lack of appreciation भी बहुत बड़ा कारण है जो उन लोगों को डिप्रेसिव मूड में रखता है. Suppose she goes out and she buys something कि हाँ मम्मी आज तो हमको एक आइसक्रीम खाने, तो appreciate her even for that. Give positive reinforcements for any small positive step that person has taken. Stay in touch. आप suppose आपकी mom is going through a depressive mood and आप दूसरे शहर में रहते हो, you cannot go and meet her daily, but at least even a phone call आपका अगर जाता है तो it will matter. It will bring hope in them कि at least there is somebody जो मेरे से बात करना चाहता है and I am important to somebody. एक एग्जाम्पल मैं यहाँ पे देना चाहूंगी. आई हैड अ फ्रेंड, शी यूज्ड टू स्टे इन कैलकाटा, नो शी शिफ्टेड टू गुवाहाटी. एंड गुवाहाटी में वो हुआ ना, व्हेन शी लेफ्ट हर होम टाउन एंड व्हेन शी शिफ्टेड टू गुवाहाटी, उसको वो डिप्रेसिव मोड में गई बिकॉज मेट्रो सिटी से एक छोटे टाउन में जाना एंड यहाँ पे कॉम्प्लेक्स में रहना, वहाँ एक बड़े से बंगलों में अकेली रहना. तो शी वाज इनटू दिस, बट I made it a point कि मैं almost every day उससे एक फोन करके बात करती थी. Then she felt कि नहीं, it's okay if I've shifted, but I've got friends there.
So that helped her to deal with that difficult situation that she was in. Understand, you can't cure their situations. हम उनके सिचुएशन को क्योर नहीं कर सकते. हम लोग वो माता जी मोड में जाके एक प्रोजेक्ट बना लेते हैं कि अरे वो इस प्रॉब्लम से डील कर रही है, सो मुझे तो प्रोजेक्ट बना है उसको खुश करके निकालना ही है. बट प्लीज अंडरस्टैंड, यू can't cure their condition. एक क्रीपर गमले में उगता है तो वो धीरे 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 नीचे की ओर ही फैलता है, unless and until we don't give that support of the stick. अगर उसको स्टिक का सपोर्ट मिलता है, क्रीपर क्लाइम्स अप एंड वो एकदम स्ट्रेट ग्रो करता है. सो वी हैव टू बिकम दैट सपोर्ट. हम लोग खाद नहीं बन सकते हैं, लेकिन हम वो सपोर्ट बन सकते हैं. तो हमको वो सपोर्ट बनना है उसके लिए. सो वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट वी कांट क्योर देयर कंडीशन. बी केयरफुल नॉट टू शेम देम. एक बच्चा बहुत हेल्दी है, शी इज ट्राइंग वेरी हार्ड टू लूज वेट, बट उसका वेट नहीं जा रहा है एंड शी हैज गॉन इनटू दिस डिप्रेशन मोड बिकॉज anybody would in that situation. तो हम लोग हमेशा जाएगा कैसे, एक्सरसाइज करती है फिर खा के बैठ जाती है. सो those things hit them very badly. या एक्सरसाइज करके तो 2 घंटा सो जाती है, तो वेट कहाँ से जाएगा. So these things always hampers their mental mental condition. So वो लोग और डिप्रेशन में चले जाते हैं. तो बी केयरफुल. वो एक्सरसाइज करके अगर सो रही है खा रही है, बट एक्सरसाइज की ना, उस चीज के लिए उनको पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट दीजिए. So next time she'll understand कि no, I'm exercising, my mom is liking it, so okay fine, I'll exercise a bit more. Get support yourself. वही माता जी मोड में चले जाते हैं, सामने वाले को इतना प्रोजेक्ट बना लेते हैं, तो कई बार उनके डिप्रेशन के साथ साथ हमारे अंदर भी डिप्रेसिव फीलिंग्स आने लग जाते हैं. हम लोग भी सोचने लगते हैं because somewhere we start connecting to them कि अच्छा हाँ इस समय गुस्सा आना, नेक्स्ट मोमेंट इफ समथिंग सिमिलर हैपेंस, डिप्रेसिव मोड में चले जाते हो. तो प्लीज अगर ऐसा कुछ होता है तो गेट सपोर्ट योरसेल्फ. एंड अगर आपके अंदर वो ट्रिगरिंग पॉइंट्स आता है कि नहीं नेगेटिविटी इज क्रीपिंग इन मी, तो आप पहले उससे थोड़ा सा डिस्टेंस कर लो फॉर अ टाइम पीरियड, सो दैट यू योरसेल्फ डोंट गो इनटू दैट नेगेटिव मोड. वॉच आउट फॉर इमीडिएट डेंजर. लाइक आई सेड पहले भी कि अगर कोई एक हार्श स्टेप लेने जा रहा हो टू हार्म हिमसेल्फ और हरसेल्फ, तो वो जरूर साइंस देता है, somebody to whom he is close to. तो वो साइंस के लिए प्लीज कीप योर आईज ओपन कि अगर वो ऐसा कुछ साइन दे रहा है तो सीक इमीडिएट हेल्प फ्रॉम अ therapist or a psychiatrist or a psychological counselor or a psychologist, a clinical psychologist, anybody who is available. Realize that you don't know how they feel. एक सिचुएशन सबके लिए सेम है, बट उससे एक इंसान में क्या फीलिंग्स आती है या क्या इमोशंस आते हैं, दैट इज डिफरेंट फॉर एवरी पर्सन. सो वी डोंट नो हाउ दे फील. वी जस्ट हैव टू बी देयर, रेस्पेक्ट देयर फीलिंग्स और उनके फीलिंग्स को एक्सेप्ट कीजिए कि यस, इफ ही और शी इज फीलिंग लाइक दिस, वो वैसा फील कर रहा है. हम लोग थोप नहीं सकते, नहीं ऐसा तो हमारी दादी नानी, दे डोंट अंडरस्टैंड दिस, वो लोग यही बोलेगी फ्रेंड से कट्टी हो गई तो वापस बात कर लो, इसमें दुख होने का क्या बात है, इसमें बुरा लगने का क्या बात है. मैंने तुमको बोल दिया कुछ तो तुमको बुरा लग गया, इसमें बुरा लगने का तो कोई बात ही नहीं है. बट वी डोंट नो कि उसको कहाँ हिट किया है, क्या खराब लगा है. सो वी हैव टू रियलाइज दैट वी डोंट नो हाउ दे फील. टेक केयर ऑफ योर फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ एज वेल. हम लोग जब प्लेन में बैठते हैं, जब वो इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं, वो ऑक्सीजन मास्क का क्या बोला जाता है, सबसे पहले अपना पहनिए फिर दूसरे का पहनिए. तो इसीलिए पहले अपना फिजिकल और मेंटल हेल्थ का ध्यान रखिए, फिर दूसरे को हेल्प कीजिए. एंड इफ यू फील दैट दैट पर्सन एक्चुअली नीड्स अ थेरेपिस्ट, तो प्लीज एनकरेज देम टू गो एंड टॉक टू अ थेरेपिस्ट. काउंसलिंग का बहुत बड़ा मिथ है, मैं घंटों बोल सकती हूँ उस चीज के ऊपर. बट काउंसलिंग का बहुत बड़ा स्टिग्मा है हमारे सोसाइटी में कि पीपल डोंट वैल्यू द सर्विस ऑफ काउंसलर. इसलिए I and my colleagues, we are a team of 4 people. We are planning to open up an NGO. We are working on this, जिसमें हम लोग फ्री काउंसलिंग सर्विसेज देंगे. क्योंकि तो वो बहुत एक्सपेंसिव होती है तो पीपल रिलेट नहीं कर पाते हैं. सपोज अ चाइल्ड इज गोइंग
बैड फेज, तो पेरेंट्स लोग को वो फी बहुत एक्सपेंसिव लगती है, बिकॉज इट इज अ टाइम टेकिंग प्रोसेस. So if you feel that that person, आपका close ones, needs a professional help, so please encourage them to go and see a therapist. So we are ending the session now with the few things. These are few things that we teach the clients in our counseling sessions, जिसको आप भी अगर अपने घर में प्रैक्टिस में लाओगे, तो अगर आपके अगल बगल के जो लोग हैं वो लोग अगर एक बैड फेस के थ्रू जा रहे हैं, so they can come out of it. These will help them deal with their negative state of mind. Mindfulness. I think most of you know what mindfulness is. I want to see whether you know or not on the chat box. Yeah, we had a session on mindfulness. Yes, so everybody knows what mindfulness is, to be in the present moment. Yeah. लेकिन सेशन के स्टार्टिंग पे मैंने क्या कहा था, डू नॉट एडवाइस, ज्ञान मत दीजिए. हाँ. उनको ये चीज कैसे करोगे, ये जो पांचों चीज मैं अभी बताने वाली हूँ, यू विल सेट अप एन एग्जाम्पल बाय डूइंग इट योरसेल्फ. जब वो आपको करता देखेंगे तो कहीं ना कहीं वो बात उनको रेजोनेट होगी, और वो बंद कमरों में जरूर करेंगे उसको. दे विल ट्राई इट आउट, बिकॉज नोबडी वांट्स टू लिव इन दैट डिप्रेसिव मोड. सब उससे बाहर निकलना चाहते हैं, बट फियर ऑफ जजमेंट, कि कोई मेरे बारे में क्या सोचेगा बोल के, दे डोंट ओपन अप. तो माइंडफुलनेस, यू कैन स्टार्ट विद टेलिंग देम कि आप मेडिटेशन करिए. मेडिटेशन जब इंसान 40 मिनट्स का 10, 20, 30, 40 जितना भी वो कंफर्टेबल हो, अगर मेडिटेट करता है तो ही ऑलवेज कॉन्सेंट्रेट्स ऑन व्हाट ही हैव थॉट्स, एंड जब वो वापस उसके then he will understand what pattern he is going through, and then of course he will try to break it up. कि नहीं, ये negative pattern is hampering me, I need to deal with this. So he will try to come out of it. Gratitude. हम लोग हमेशा जो चीज नहीं है उसके ऊपर फोकस करते हैं, लेकिन हमारे पास जो है उसके लिए हम लोग थैंक यू भी नहीं बोलना सोचते जरूरी. बट यू नो, द एक्ट ऑफ ग्रैटिट्यूड ऑलवेज कीप्स अस पॉजिटिव. एक थैंक यू to whoever has done something for us, be it God, be it your parents, be it a friend, be it your staff. Just be grateful to them for doing something. Suppose you've come home from office and आपकी मेड आपके लिए बहुत अच्छा खाना बना के रखी है. हमारे मन में रहते हैं तो इसकी ड्यूटी है, क्योंकि हम उसको पे करते हैं, उस चीज के लिए तो रखा है हमने. बट इफ यू से वाओ दीदी, आज तो आपने बहुत अच्छा खाना बनाया है, सो दिस ग्रैटिट्यूड ऑलवेज कीप्स यू पॉजिटिव. Right? Somebody, if you're walking on the road and all of a sudden you fell down and somebody just helped you get up, so हम लोग फॉर्मेलिटी में थैंक यू बोलते हैं, लेकिन उसको दिल से थैंक यू बोलना is gratitude. Yeah. Saying thank you with what you feel is gratitude. So if you start practicing gratitude in front of your near ones who is going through a bad phase, so even they will learn how to say a thank you, and that will give them a slight positivity. No, a sense of satisfaction, acceptance. See, whenever we have something to deal with, कुछ खराब हमारे संग हुआ है या कुछ इंसिडेंट हुआ है जिसके कारण आई एम फीलिंग वेरी बैड अबाउट इट, देयर आर 3 ways to deal with it. First is let it go. ठीक है? Second is either you do something about it. If somebody has said something, आपको गाली दे के गया है, तो you need to do something about it, or you seek a therapist का help. There are 3 things that we need to do about it. So अगर आप कुछ कर नहीं सकते हो किसी सिचुएशन में ऐसा कि there's nothing, no scope of doing anything, so at least you can accept this. जो हम हिंदी में कहावत बोलते हैं ना, भगवान जो करता है अच्छे के लिए करता है. See, जैसे ही हम ये एक सेंटेंस बोलते हैं, we accept what is happening to us. So if we accept the situation which we cannot do anything with, so that gives us a sense of resonation inside us. That gives us a sense of confidence कि yes, now it's time to move on. जो हो गया हो गया. And you know, when we start accepting things that are not happening as we wanted it to have in our life, जब वो चीजें नहीं होती है तो हम लोग acceptance से we can come out of it, and बहुत peacefully हम लोग उस चीज से आगे बढ़ सकते हैं अपने जीवन. Affirmation.
if you are going through a bad phase, so if you start writing affirmations every day, जब हम किसी डिफिकल्ट सिचुएशन के साथ कोप अप नहीं कर पाते हैं तो हमारे अंदर उस सिचुएशन को लेके बहुत नेगेटिविटी होती है, थॉट्स में नेगेटिविटी होती है, दिल में चाहत कुछ और होती है. So when you start writing your affirmation or saying your affirmation once daily, so it becomes a part of your thought process. And धीरे धीरे it gets implemented in your thought and आप उसी राह पे चल देते हो. Affirmation, acceptance, gratitude, इन सब का पावर बहुत हाई होता है. हाई है, बहुत हाई होता है. People don't agree to it. उन लोगों को लगता है फालतू बातें, बट ऑफ कोर्स इनका पावर बहुत हाई होता है. मैनिफेस्टेशन. व्हाट इज मैनिफेस्टेशन? मैनिफेस्टेशन इज कि हमारे अंदर की जो फीलिंग है उसको हम बाहर प्रोजेक्ट करें, हम उसको अपनी रियलिटी में लेके आए. सो इफ आई एम फीलिंग वेरी नेगेटिव, देयर मस्ट बी सम स्मॉल पॉजिटिव दैट इज इनसाइड मी. सो अगर हम उसको मैनिफेस्ट करें अपने रियलिटी में, तो स्लोली वी विल स्टार्ट टू वॉक ऑन द पाथ ऑफ पॉजिटिविटी. Like manifestation is also called law of attraction. We attract what we think. तो अगर हम बहुत ज्यादा नेगेटिव सोचते हैं तो we tend to attract what we think. तो हम नेगेटिव ही अट्रैक्ट करेंगे. And if we focus even a drop of positivity inside us, so next time we'll attract that drop. So that makes 2 drops. So manifestation again is a very important tool, so which we can explain it to our loved ones who is going through a difficult situation. Yeah. Out of this. So I think that comes to the end of the session. And my mission in life is to break the stigma of counseling. That's why I told you, we have already started a group therapy called Safe Space, जो हमारे पहले हमारे चेंबर में होता था, but now since कोरोना इतना फैला हुआ है, so we are doing it on Zoom. It happens every once a month, जिसमें we give a topic, उसमें हम लोग फेसबुक पे उसको पॉपुलराइज करते हैं. So whoever wants to come and talk about it, and we actually provide a window for a person to just share the experience, so that when that person finds that there are so many people who are going through the same experience, so they start feeling comfortable. Yeah, I'm not alone in feeling this. We've already had 2 sessions to it. One was on when I thought of committing suicide, and there were 15 participants in that, and you won't believe how beautiful that session was. And everybody went back home very positive. This is something that we are not going to do in our life. Again. Yeah, again. And the second one was, what are my feelings during this pandemic? Corona pandemic has sent a lot of people into depression. So that was the second part. And my second issue is to motivate all to strive for self-development and growth. जैसे कविता करती, I think it is at par with Kavita's mission. Yeah. So self-development and growth. And thank you for listening to me for such a long time. Thank you so much. Wow, fabulous, Sarojji. I hope headaches तो नहीं हुआ? No, not at all. It was जैसा अपने एक्सपीरियंस करते हैं ना, उसी से रिलेटेबल सारे आपके जितने भी पॉइंट्स थे, they were all from our everyday life which we are experiencing. So headache का तो सवाल ही नहीं. There are a few questions on the chat box. Yes, please. So yeah, I will do. So just a second, it's just gone up. Yeah, so if the person is not willing to share, even if we are ready to listen and we are very close, like suppose if my daughter doesn't want to discuss or share anything with me, so because why? Because they think that we will not understand. So what should we do in that situation? Yes, see, this is a very common, this is most common thing, क्योंकि your child की वो open up करे से it becomes, am I audible? थोड़ा break होकर आ रहा है, थोड़ा break होकर आ रहा है. I don't know why this is happening, because my internet is right here next to me. So you know what, when I was a school counselor, and
I used to have 6 children every day for counseling, and those children का first sentence as soon as they entered my counsel, I hate my parents. That was the first line. And मेरा बहुत time उनको ये जाने में समझाने में जाता था कि your parents are only actual pillars of support that you have in your life. So please go and talk to them. So अगर आपका बच्चा आपके साथ शेयर नहीं करना चाह रहा है and you know that that person is going through a difficult time, give them that time, but उसको साइंस दीजिए जो मैंने पहले कहा आपको 5 पॉइंट्स मैंने बताए थे ना, डिपेंडेंट, ट्रस्टवर्दीनेस, वो साइंस आप दीजिए that you are open to anything and he or she is not going to be judged. क्योंकि उनको आपके डांट से बहुत डर लगता है, उनको लगता है you will start screaming माता जी मोड, वो माँ के मोड में. You can also help them कि कोई instant friend कि मॉम जिससे वो क्लोज है, या किसी मासी से, बुआ से, किसी अंकल से वो बहुत क्लोज है, तो आप उनको बोल सकते हो कि वो उनको ओपन अप करे, because we cannot force anyone to open, right? It is their prerogative to open up. We can lend a helping hand, लेकिन सामने वाला आपका हाथ पकड़ेगा कि नहीं, it is their choice. So हम उसमें कुछ नहीं कर सकते. आप ज्यादा से ज्यादा उसके किसी क्लोज वंस को बोल सकते हो उससे बात करने के लिए. And you can always send signs that you are there for her. Yeah. And just be there for her. Just be there when she comes home. Just be there when she needs you. Okay. Another is listening to problems doesn't encourage wrong thoughts. No, it doesn't. See, you will have no control over that person's thoughts. वो क्या सोच रहा है ये उसका सोच है, लेकिन आप अगर एक वेन्यू दे रहे हो, उसको एक प्लेटफॉर्म दे रहे हो जिसमें वो आपके सामने सब कुछ बोल रहा है और आप चुपचाप सुन रहे हो, दैट इज अ काइंड ऑफ वैलिडेशन कि हाँ, मे बी आई डोंट अग्री विद व्हाट यू आर सेइंग, बट आई एम देयर फॉर यू and I understand what you're going through, and I understand that yes, this is this. 2 बार 3 बार 4 बार 5वीं बार वो आपसे जरूर पूछेगा कि मैं कुछ कर सकता हूँ इस चीज के लिए, बट आप पहली बार में आप एडवाइस मोड में चले जाओगे तो सेकंड टाइम वो आपको बोलेगा भी नहीं. So listening is the best thing that you can do for a person who is facing something difficult and not able to cope up. सरोज जी, एक चीज मुझे बताइए कि should we tell them that we do not agree with you but I'm there to listen to you? Suppose if you know they are saying something which we feel कि एकदम ही absurd है या whatever, तो बोलना चाहिए कि नहीं, just सुन लो? देखिए, आप अगर बोलते हो I don't agree with you but you're feeling, तो आप उसको पहले ही एक बैक स्टेप पे भेज दे रहे हो. No, after they say it, right? आपसे किसी ने कोई बात शेयर की, आपने उसको अग्री नहीं किया, बट आप बोल रहे हो बट आई एम लिसनिंग टू यू, बट दैट डजंट मेक एनी कनेक्शन, बिकॉज वो आपको सुनाने नहीं आया है, वो आपको समझाने आया है कि दिस इज व्हाट आई एम गोइंग थ्रू. सो अगर आप अग्री नहीं भी कर रहे हो तो यू हैव एम्पैथी. यस, आपको नहीं बोलना चाहिए, आप उसको एम्पैथी दिखाइए. सपोज ही सेज कि बहुत मन क्या मेरे को एक घूसा मारे उस आदमी को जिसने मुझे ऐसा किया. तो अगर बच्चा हमारा बोल दे तो हम लोग तो तुरंत चढ़ जाएंगे, मारना नहीं है बेटा, एकदम नहीं मारना किसी को. बट अगर आप एम्पैथी दिखाते हो तो आप तुरंत उसको यही बात बोलोगे, हाँ बेटा आई कैन टोटली अंडरस्टैंड, हम तुम्हारे जगह होते ना तो हम भी एक गुस्सा मारते उसको. देन वो कनेक्शन तुरंत बन जाएगा. He will again open up to you all the more. ठीक है? Am I clear? Yes. Manisha had written that she wants to ask something. Manisha, अभी पूछना है? Hi Saroj, nice session. Thank you. मुझे ये पूछना है कि जैसे हम लोग एक अपने आप को प्रेजेंट कर देते कि वी आर देयर फॉर यू, बीट फ्रेंड, बीट योर ओन चाइल्ड और एनीवन, और वो बंदा आपके साथ शेयर कर लिया, आपने उसके स्टाइल में उससे उसकी बात निकलवा भी ली, उसकी दोस्त भी बन गए, लेकिन हर बार उसकी बात बिना उसका, जैसे आपने कहा भी कविता, क्योंकि हम लोग को ऑब्जेक्शन नहीं करना चाहिए या तुम गलत हो नहीं कहना चाहिए, लेकिन अल्टीमेटली मुझे ऐसे लग रहा है कि कई जगह मैंने करके जब देखा कि वो सामने वाले को लगने लगता है कि वो जो कर रहा है दैट इज जस्टिफाइड. मतलब वो चीजें नहीं, मैं आपको बता रही हूँ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम से होता क्या है कि धीरे धीरे वो इस एफर्मेशन में चला जाता है कि मनीषा इज अग्रीइंग टू द थिंग कि मैं ठीक ही हूँ शायद कहीं पे, इसलिए मेरे को कुछ नहीं कह रही है, सिर्फ सुन के, वो सिर्फ इसलिए नहीं सुन रही कि मेरा गुस्सा शांत हो जाए, वो इसलिए सुन रही कि वो कहीं ना कहीं एक्सेप्ट कर रही है कि मैं सही हूँ. और उस चक्कर में हो क्या रहा है कि वो बंदा अपने आप के कोकून में राइट हो जाता है
और वो उसी ट्रैक पे आगे बढ़ते चला जा रहा है, ये मुझे ऐसे लगता है। अच्छा मनीषा एक बात बताओ, अगर वो राइट होता तो वो इस डिफिकल्ट सिचुएशन में क्यों होता? वो अपनी सेल्फ एसेस करते हैं खुद को, वो लोग राइट प्रूव कर लेते हैं। हर टीन्स के साथ, हर यंग लोगों के साथ ये होता है कि उनको लगता है कि दे आर जस्टिफाइड, बट वो जस्टिफिकेशन वो खुद हो जाता है। और हम जब उसे स्टैंप लगा देते हैं सुन के चुपचाप, तो वो डबल स्टैम्प हो जाती है। क्लियर वन थिंग यहाँ पे कि अगर आप उसको सुनते हो एंड यू डोंट से आई डोंट अग्री विद यू, लेकिन आपने ये भी नहीं बोला आई अग्री विद यू। Okay. You just We listen. need to be very diplomatic while doing this. This is not diplomatic in psychological terms. This is empathetic being in psychological terms. And when you feel that नहीं वो गलत रास्ते जा रहा है एंड आप उसको नहीं समझाना, आपको तो यू डोंट हैव टू गिव देम एडवाइस अनलेस दे आस्क फॉर इट। सी अपने बच्चे को हम लोग तो माताजी मोड में जाके एडवाइस देते ही हैं, इमीडिएटली देते हैं, बट अगर आपको नहीं देना है, ही इज इन दैट लेवल ऑफ डिप्रेशन कि आपको तो यू कैन ऑलवेज, अगर आपका फ्रेंड हो, आपके रिलेटिव हो, आपका हस्बैंड हो, आपको अपना टेंशन बताया, आपने चुपचाप सुना कि उसको, लेकिन अल्टीमेटली फिर तो हम लोग पाइल ऑफ गार्बेज हो जाएंगे ना, कि सबका ले रहे तो हम कहाँ जाके निकालें फिर। मतलब वो जो चीज हम लोगों के साथ होगी, अगर आपको ये चीज थॉट में आता है तो डोंट बी देयर फॉर टू लिसन टू देम। यही चीज तो आपको करनी है कि यू डोंट हैव, सी अपना मास्क पहले लगाना है, फिर दूसरे को हेल्प करना है, नंबर 1। एंड सेकंड कि अगर आपको लगता है कि दैट पर्सन वो बहुत कुछ ऐसा कर रहा है जो सच में गलत है, तो यू कैन ऑलवेज पुट आउट अ क्वेश्चन टू हिम कि मेरे ख्याल से अगर तुम इस चीज को इस नजरिए से देखो तो मतलब ऐसा रहेगा। हाँ, मतलब वी हैव टू प्रूव आवर ओपिनियन, राइट? थैंक यू। यू डोंट हैव टू से आई डोंट अग्री विद यू। सी शब्दों का चयन बहुत इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पे, राइट? अगर आप एकदम एक बार में एक स्टैंप लगा देते हो आई डोंट अग्री विद यू, तो वो तो चलो आपसे कनेक्शन ही ब्रेक हो गया। बट आप उसकी सारी बात सुन के अगर आप बोलो हाँ मैंने सुना, आई अंडरस्टैंड दैट यस यू आर गोइंग थ्रू दिस, बट इफ वी सी इट फ्रॉम दिस पर्सपेक्टिव, व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन दिस? मींस बहुत सॉफ्टली अपनी ओपिनियन उसके सामने रखनी है कि मुझे ऐसा लगता है कि हम ऐसा कर सकते हैं। See, this is what we counselors do ना, we show them different perspectives and we show them कि तुम जिस सोच से सोच रहे हो that is not the only thing, there can be as many perspectives also. तो ये ट्रिक्स भी मैं तुम लोग को बता दूंगी तो मेरा प्रोफेशन कहाँ जाएगा? कोई बात नहीं, हम लोग तुमको और 100 जगह प्रमोट करेंगे, नॉट अ प्रॉब्लम। So but थैंक यू। Since you have got teens जो बहुत ज्यादा ये प्रॉब्लम्स करते हैं, तो you can always very softly and उन्हीं के लेवल पे आके आप अगर अपनी बात को रखो, शब्दों का चयन बहुत इंपॉर्टेंट होता है इसमें। हम लोग पूरा एक सेशंस वर्कशॉप्स लेते हैं, हाउ टू स्पीक एंड व्हाट वर्ड्स टू यूज, व्हाट वर्ड्स नॉट टू यूज, टू ट्रेन पीपल एज केयरगिवर्स। ओके, थैंक यू। Okay, yeah, there are many more. So some people are not negative. Huh? Some people are not negative. You can't hear me? Can you hear me? No, I can. Some people are not negative, but just feel low without any reason. What to do then? See, just feeling low because of any reason is because of their own self-talk. This is again a term that we use. क्योंकि हमारे we've got 3 different mental aspects में, we've got 3 different what to say positions, 3 different I don't know what word to use, लेकिन 3 अलग-अलग levels होते हैं हमारे, conscious, unconscious and subconscious. तो हमारे subconscious mind में जो हमारा past में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हुआ है, I told you ना यहाँ पे एक store होता रहता है, तो वो सरोज जी आप वो भी रिपीट करना ना, वो जो पेन वाला आपने बताया था ना उस टाइम थोड़ा सा वॉइस कट हो गया था। हम लोगों के we have got 3 levels of mental states. One is conscious, unconscious and subconscious. Unconscious is जो हम लोग सुनते और भूल जाते हैं, but there are things that get stored in the unconscious mind for long time. वो हमारे अंदर कहीं ना कहीं unconscious mind में रहता है। कॉन्शियस माइंड इज राइट नाउ, मैं बोल रही हूँ, मैं क्या बोल रही हूँ, मेरे हाथ के मूवमेंट्स कैसे हो रहे हैं, मेरा सर कैसे हिल रहा है, सो दिस इज कॉन्शियस माइंड, योर कॉन्शियस माइंड इज वर्किंग। बट सबकॉन्शियस माइंड इज अ स्टेट बिटवीन द कॉन्शियस एंड द अनकॉन्शियस। तो अगर मैंने आपसे अभी पूछा कि आप ब्रेकफास्ट में क्या खाए, तो यू विल टेक सम टाइम टू थिंक, फ्यू सेकेंड्स कि अच्छा मैं तो ओट्स खाई थी, राइट? सो दैट इज स्टोर्ड इन योर सबकॉन्शियस माइंड। तो हमारा जो अनकॉन्शियस माइंड है जहाँ स्टोर होता है, वो ये जो बैक ऑफ द नेक है, देयर इज एन ऑर्गन कॉल्ड अमिगडाला,
सो एमिगडाला में स्टोर होता है दैट अनकॉन्शियस माइंड. सो जब आप डिप्रेशन में जाते हो, आपको हेडेक स्टार्ट होता है, तो देखिए आपको इस जगह एकदम बैक ऑफ द बॉटम नेक पे आपको पेन होता है. सो जब वो पेन्स आते हैं, देन यू नीड टू एड्रेस योर मेंटल हेल्थ. यू हैव टू सिट एंड थिंक व्हाट इज bothering me. Why am I getting these unexpected aches and pains? Why am, as somebody said, कि मैं without any reason I'm feeling low. So you have to think what is making me feel low. See, I'll give you one more tip here. जो थोड़े like you said ना, without any reason somebody asks this question, the low feel क्यों करते हैं? अगर एक regular feature है आप में, तो you can start writing journals. I'm sorry, journal means writing a diary. आप अगर अपनी डायरी में आज का दिन आपका कैसे गया, उस समय आपके दिन में आपने कब ये चीज फील किया कि आप लो फील कर रहे हो, उसके पहले क्या हुआ था जो आपको इस लो पे ले गया, then you will start recognizing your own thinking pattern, your pattern of thoughts, your pattern of behavior. फिर आप समझोगे कि there is a cycle जो चल रहा है जिसके कारण आप ये लो फील करते हो. Journaling is very important अगर somebody is going through this phase. हम लोग अपने clients के साथ we maintain journals. We ask them to maintain journals, to write their thoughts. जब when you're feeling low, then what are you thinking? What is your self talk? आपका mind आपसे क्या बात बोल रहा है उस समय? So we pick up those thoughts, and those thoughts पे we decide कि how does this person need to change and how to bring in that positivity. ये बहुत technical terms हैं, technical बात, but this works like magic. Okay, Saroji, there is a question on psychology as a career. So if a child pursues commerce but want to pick up psychology, can it be done later? Or या ह्यूमैनिटीज वाले ही कर सकते हैं, वैसा कुछ नहीं. आप अगर 12th तक कॉमर्स पढ़े हो एंड देन यू वांट टू परस्यू साइकोलॉजी, यू कैन ऑफ कोर्स गो एंड जॉइन साइकोलॉजी. नो, बट अगर बैचलर ऑफ कॉमर्स कर रहे हैं, बीकॉम कर रहे हैं, फिर उसके बाद भी देयर आर मेनी, बिकॉज आई वाज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट व्हेन आई गॉट मैरिड. आई वाज इन माय फाइनल लेवल ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंसी, और मैंने बस ग्रुप 2 मेरा बाकी था एग्जाम देना, एंड मेरी एंगेजमेंट एक चार्टर्ड अकाउंटेंट से हो गई. सो आई थॉट कि सेम प्रोफेशन में तो नहीं जाना है, नहीं तो घर में लड़ाइयाँ ही होंगी. सो आई ड्रॉप्ड ऑफ माय करियर देयर. उसके बाद आई डिड लॉट्स ऑफ अदर कोर्सेस, बट I joined this counseling course at the age of 47 when both my children were grown ups. So yes, you can join psychology. So you can do it. And you won't believe it, जब मैं join की थी ये पढ़ाई अपना, and I used to take that school bag, side में बड़ा bag, books and all, and गाड़ी में बैठती थी तो मुझे बहुत awkward लगता था. किसी, and my children used to actually मतलब promote me. They used to push me कि नहीं मम्मी, you have. मैं पीछे कार पार्क में जाके चुपचाप बैठ के निकलती थी. It doesn't look awkward. Yeah. So that's okay, fine. But now everybody's appreciating and I'm happy. Absolutely, yes. So inspiring that, at this age also you went ahead and learned something new. And I'd like to share something here. So during my first year of this this course, we had to sit for 2 exams. So when my first exam happened, it was a 2-day exam. So second day जब मैं examination hall के बाहर आई, तो I saw my daughter standing there. I said, तुम यहाँ क्या कर रही हो? She said कि जब हम लोग का एग्जाम होता था, आप स्कूल लेने आता, तो हम लोग आपको लेने आया है. So that was the best earned moment for me. So she was in her MBBS at that time. So she took me out shopping and then dinner पे cake. Pampering. Exam over होने के बाद का pampering. Yes. She said, you've been doing this for so many years for us, so now this is our chance to do it for you. So that is one of the best moments of my life. Yeah, so अच्छा एक चीज और बताइए ना सरोज जी, सपोज अब जैसे कई बार होता है कि बच्चे अपने से उतना क्लोज नहीं होते हैं, और सपोज माय डॉटर शी इज वेरी क्लोज टू हर बुआ और हर मासी, और मुझे नहीं बता रही है और उनको सारा बात बता रही है, सारा कुछ मैं कर रही हूँ उसके लिए, तो देन समटाइम्स वी फील वेरी वेरी लो कि what is wrong which I am doing, she's not sharing with me. Think about it, what is wrong that you are doing. Focus on what
you are doing, how you are treating her, आप उसको कितना टाइम दे रहे हो, आप उसको कितनी प्रायोरिटी दे रहे हो, आप उसकी बातों को कितना कनेक्ट कर रहे हो, आप कितनी बार माताजी मोड में चले जाते हो, आप कितनी बार उसकी बातों को काट देते हो, कितनी बार उसको इम्पोर्टेंस नहीं देते. How old is your? Mine is 13. 13. So this is the right time for you to become a friend. True. This is high time you became a friend instead of a mother to her. Like many a times parents do come and tell us कि अगर हम लोग ही friends बन जाएंगे तो मम्मी पापा कौन रहेगा? कोई तो मम्मी पापा भी होने चाहिए ना. But what I feel कि मम्मी पापा अपनी जगह हैं to teach them, to discipline them, to help them grow up into good human beings. But अगर आप ही उसके best friend बन जाओगे तो why will they look out for outside sources? And this is high time you became her friend. Friend कैसे बनना है? I'll give you tips on this. You know, she's 13-year-old and इस age में बच्चे सोचते हैं they're grown up. They know everything in the world. They can handle lives. They can handle their difficult situations. They don't need anybody to help them. And parents उनके सबसे पहले enemies होते हैं at this age. So इस age पे अगर आप अपनी बातें उससे share करना start कर दो, very small things. आज पापा ने मुझे डांटा. So she will feel that, oh, you have that faith in her कि she is grown up and she is able to understand your problems. आप अपना experience आप अपने friend के साथ गए, आप बहुत enjoy किए, तो come and share with her. थोड़े दिनों बाद आप देखोगे she will start sharing with you because you have given her the recognition that she is now grown up and you are treating her as one. So that will help you build that bridge. Okay. ये हम लोगों को start कर देना चाहिए from the age of 11 like this. Because आजकल के बच्चे बहुत जल्दी mature होते हैं. That is true. 13 मतलब 16 का mind frame है. 18 का mindset हो गया. Okay. I'll give you an example. यहाँ पे I had a client. I had a girl. She used to come to me. She was around 13 years old, and she was into drinking. She was into smoking. She was into sex. Can you believe a 13-year-old girl? उसके मम्मी पापा को कुछ नहीं पता. They think their daughter is a princess. Yeah. पेरेंट्स क्योंकि वो हमेशा एक पेरेंट मोड में होते हैं ना. दिस इज व्हाई वी नीड टू बी फ्रेंड्स फ्रॉम अ वेरी स्मॉल एज बिकॉज तब बच्चा आपसे खुल के बोल सकेगा और आपकी बातों को अंडरस्टैंड कर सके. Yes. Then there is, like Namrata says, that when we say we are also having problems like similar to yours, people will feel that their problem is insignificant for us, and that is why we are again highlighting our own problem. नहीं ऐसा नहीं सोचते हैं वो लोग. आप अगर अपनी प्रॉब्लम को उनकी प्रॉब्लम के ऊपर रखेंगे, इंस्टेड ऑफ गिविंग देम टाइम टू टॉक अबाउट देयर प्रॉब्लम्स, यू टॉक अबाउट योर प्रॉब्लम्स मोर, तब वो लोग करेंगे. बट इफ यू से कि आई अंडरस्टैंड व्हाट यू आर गोइंग थ्रू बिकॉज इवन आई हैव गॉन थ्रू दिस, जस्ट वन सेंटेंस विल गिव देम होप. सी अगेन इसका भी हम लोग ट्रेनिंग करते हैं. जब हम लोग केयर गिविंग सेशंस करते हैं उसमें भी हम लोग ये ट्रेन करते हैं कि क्या चीज को कैसे बोलना है, कैसे रखना है. इफ यू जेन्युइनली वांट टू हेल्प सम पर्सन, सिर्फ जाके उनकी बातें सुनना एंड फिर शांत हो जाना इज नॉट हेल्पिंग समबडी. You need to have that genuineness inside you, that compassion inside you कि नहीं मुझे उसको help करना है. That's what. Somebody's asked यहाँ पे which institution. See, that is yours. Yeah. Yes, I did that from a counseling institute which gives us certificates, diploma certificates, which is recognized by Calcutta University. Yes. But since if somebody is interested to do this, please do which is affiliated to any university. क्योंकि अब इसकी लॉ बनने वाली है तो अब आपको वो प्रॉपर यूनिवर्सिटी सर्टिफिकेट्स होने चाहिए. हम लोगों ने जब ये the next 5 years or 7 years हमारी जब तक प्रैक्टिस चलेगी तब तक ये लॉ नहीं आएगा, बट नियर फ्यूचर में आ सकता है. So since it was not on the table at that moment, we did these courses. But you can go to Jadavpur University, you can go to any Calcutta University affiliated colleges. Everybody gives this certificate, CU affiliated certificates. Okay. और आप किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से भी करना चाहते हो तो प्लीज मेक श्योर कि वो एफिलिएशन वाला सर्टिफिकेट देता है. इट इज नॉट जस्ट अ डिप्लोमा सर्टिफिकेट बिकॉज इन अ फ्यू इयर्स दैट इज नॉट गोइंग टू वर्क.
फिर हम लोग सबका प्रोफेशन हम लोग वापस घर में आ जाएंगे. So even we No, are but then planning. your experience will help. Yeah, my experience will help, of course, but then you will not get clients because that is not going to be recognized. And even you feel guilty of not doing something which is not legal. So, okay, we'll be into NGOs and we'll do something. We'll cross the bridge when we'll come to it. Absolutely. Sarojji, so somebody is saying that her son is 9 years old, but he's too matured and acts like a teenager. So how should she deal with him? Why do you need to deal with it? Let him grow as he grows. जब तक वो कुछ गलत नहीं करे, गलत रास्ता आ रहा है, so let him grow according to his own. अगर आप एक प्लांट को टब में लगाते हो और वो अचानक से बहुत बड़ा हो जाता है तो क्या आप उसको काट देते हो? Let him grow, but just keep your eyes open कि वो गलत रास्ते ना जाए. He doesn't go into wrong habits or doesn't कोई गलत संगति का साथ ना ले. And he doesn't, जो बच्चे जल्दी मैच्योर हो जाते हैं वो लोग भी बहुत जल्दी डिप्रेशन में जाते हैं because they feel कि they're too grown up for their friends. So even the friends start rejecting them. So please keep your eyes open and just be there for him and let him grow. And if you see any of these signs कि ऐसा कुछ sign हो रहा है कि he is actually matured and he is not being accepted by his level of friends, so please take him to a therapist because a therapist will be able to help him. But be his friends first. सरोज जी एक चीज और बताइए ना कि कोई डिप्रेस्ड है, लो फील कर रहा है, so should they take up psychology as a career? Why not? They can. I did psychology as a career because I was just depressed for 1.5 years before that. बच्चे मेरे दोनों पढ़ाई में चले गए थे अपने अपने लाइन. सुबह 11 से लेके 5 बजे तक मैं, मेरा टीवी और मेरा सोफा, हम तीनों एक दूसरे के साथ ही होते थे. Then I said no, it doesn't work this way. This is not the way I want to live my life. Yeah. And all of a sudden I saw my friend का Facebook post with a placard in her hand जिस पे लिखा था I'm a counselor. So I immediately called her up and I said कि ये क्या है? So then she guided me and I went ahead and did this course. And when you do this courses, even you get a lot of counseling sessions free with these courses. So you can always tackle and help yourself out of that dilemma, that difficult situation. This is my experience, yes. Okay. So one more question is there that my child is 13 and he is not interested in this virtual classes in school and tuitions. Absolutely. He only wants to play games. Because they do not value these virtual classes. They've been conditioned to go to school, to sit with their friends, to enjoy that school period. So all of a sudden घर में ये कंप्यूटर पे ये इंटरेस्ट डेवलप होने में बच्चों को बहुत टाइम लगेगा. But we have to make them understand कि this is the need of an hour. अभी की ये जरूरत है. Because अभी जो कंडीशन है बाहर, अगर आप उससे बैठ के 1-to-1 बात करके उसको ये चीज समझाओगे कि otherwise you will lag behind in your life, that boy will listen to you. Maybe interest नहीं आएगा but at least वो बैठेगा जरूर. So excellent session, Sarojji. We've covered all the questions. Thank you so much. Shailja-di, she did answer, no? That pain wala you asked. She did answer again. I think you missed. No, if she wants, you can answer it again. She had asked वो pain वाला जो back आपने वापस से repeat किया ना अभी. हाँ अच्छा हाँ ठीक. So that I think we've covered all the questions. So Chita is saying that please speak on mindfulness. So next session, if you have a common topic, if you want, I can again come on cafe. So I can again speak on something if you people want to talk. And Sucheta, you can call me personally. I'll answer all your queries. And that will be really nice, Sarojji, to have another session on, something related to our mental health. Yes, of course. Please, if you give me a topic or we can talk on it, na? Kavita, ki this is something like we had a talk about this. Ki I want to talk on how to deal with this. Because depression common topic है हर journal में, हर paper में, हर
न्यूज फीड में डिप्रेशन के बारे में बहुत कुछ लोगों को पता होता है, हाँ, बट केयर गिवर्स के बारे में लोगों को नहीं नहीं होता। पता होता है. Absolutely true. So A that is why wonderful, I wanted to. yeah, a wonderful topic indeed, and very very you know, practical examples, and all the tips which you gave are Yes. actually doable. We will have to take that effort. Yeah. And I would like to see a thumbs up on everybody's box here, So so that I box, understand that I've been able to deliver it properly. box तो Yes. यहाँ सबका video off है. 26 people are नहीं, non. but thumbs ups are रहे, but thumbs ups are रहे. Okay. Lots of thumbs ups are there. Thank you so much, and thank you, Kavita, for me this opportunity to speak on your platform. Thank you so much. We are all glad that you did this, and it is going to help a lot of us. I think Yes, in it our is. everyday life, dealing with elders and also youngsters and also us. So thank you so much, Sarojji. Wonderful session. Thank you so much. Thank you. Thank you, everyone. Bye bye. Bye bye.